Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with lesson 6 of your Wordsworth English Reader book, A Young Girl and Her Diary. And I had explained and written the 25 word meanings and the 4 meaning of phrases of this lesson. I'm sure all of you must have completed the word meanings and the meaning of phrases in your English notebook. Not today, I'm going to continue with the reading and explanation of this lesson. So all of you, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn to page number 51. Children, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn to page number 51, lesson 6, A Young Girl and Her Diary. Students, now, before I read this lesson, we all know how difficult it was to stay in our homes during the lockdown period. We have been facing lockdown since last year, that is March 2020, और हमें पता है कि घर में बंद रहना, ना कहीं आना ना जाना कितना डिफिकल्ट होता है. तो अगर लॉकडाउन से पहले हमने लेसन पढ़ा होता तो शायद हम एनी की प्रॉब्लम नहीं समझते, लेकिन क्योंकि हमने लॉकडाउन खुद ने फेस किया है तो वी कैन एम्पैथाइज हाउ एनी मस्ट हैव फेल्ट. Annie Frank was a 13-year-old girl and she had to hide in Germany in the year 1942 with 7 other people in a small room. Now, what happened exactly that we are going to read in this lesson. So first of all, I'm going to read this lesson for you and then I'll continue with the explanation. So please listen to me carefully so that even you can pronounce the words correctly. Lesson 6, A Young Girl and Her Diary. During the World War II in Europe, the Nazis of Germany considered the Jews as inferior to them. They wanted to destroy the Jewish people and their culture. As a result, they started sending the Jews to prison camps. Annie Frank was also a Jew. To save herself and her family, Annie, along with her mother Edith, father Otto, and sister Margot, went into hiding in the backroom office and warehouse of Annie's father's business. 4 other Jews also hid with them in the small space, and their non-Jewish friends smuggled food and other supplies to them. Annie Frank was born on 12 June 1929. She began to keep a diary on her 13th birthday, 12 June 1942. 3 weeks later, they went into hiding. Annie's family never left their hideout until, unfortunately, the Nazi police discovered them in August 1944. They were then moved to the concentration camp where Annie's mother died in 1945. Soon after, Annie and her sister also died of an infectious disease. Their father was the only family member who had survived. When friends found Anne's diary in a hiding place, they gave it to her father, who got it published in 1947. Anne, who missed the company of her friends, had maintained a diary. Ultimately, the closest friend she had during her tragically short life was a diary. She addressed it as Kitty. It was only to Kitty that she entrusted her innermost thoughts. Anne's thoughts of courage and hope are recorded in her diary. They have inspired millions of readers throughout the world. Here are some excerpts from her diary. When I write, I can shake off all my cares.
April 5, 1944. Describing her despair, I have reached the point where I hardly care whether I live or die. The world will keep on turning without me, and I can't do anything to change events anyway. I'll just let matters take their course and concentrate on studying and hope that everything will be all right in the end. February 3, 1944. On a old country, Germany. Fine specimens of humanity. Those Germans, and to think I'm actually one of them, no, that's not true. Hitler took away our nationality long ago. And besides, there are no greater enemies on earth than the Germans and Jews. October 9, 1942. On still believing. It's a wonder I haven't abandoned all my ideals. They seem so absurd and impractical, yet I cling to them because I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart. It's utterly impossible for me to build my life on a foundation of chaos, suffering, and death. I see the world being slowly transformed into a wilderness. I hear the approaching thunder that one day will destroy us too. I feel the suffering of millions. And yet, when I look up at the sky, I somehow feel that everything will change for the better, that this cruelty too shall end, that peace and tranquility will return once more. July 15, 1944. Now, children, there's a pink box given at the end of page 53. Let's read that. Anne Frank's diary, published as Anne Frank, the diary of a young girl in English, has also been published in more than 60 languages all over the world. It is a powerful reminder of the horrors of the war and has continued to inspire millions of people with its resilient portrayal of the human spirit. Students, nowadays in news we are seeing about Afghanistan, isn't it? That how the Talibanis have captured Afghanistan, isn't it? They are ruling, and how the Afghan people are scared, they are frightened, they are trying to flee away from Afghanistan. Why? Because the Afghans are scared. So somewhat like this, it happened long back in 1942. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जो नाजीज थे जर्मनी के, हिटलर उनका लीडर था और उन्होंने ज्यूस को, जो जर्मनी में रहते थे और जर्मन उनको नेशनैलिटी मिल चुकी थी, उन्होंने उनको वहां से हटाना शुरू किया और उनको वहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला जहां पे बहुत इनह्यूमन कंडीशंस थे. As we have read in the lesson, how Anne Frank's mother, she passed away, and after some time she and her sister also died. So that time Anne Frank had only the diary. She used to write whatever she used to feel like. Generally आपके मन में बहुत सारे thoughts चलते हैं, आप किससे शेयर करते हो? फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से. But Annie didn't have anyone to talk. In that small room, she was locked up with 7 other people, including her were 8 people locked up in a small room, and wahan diary thi. Finally, after 2 years, they were caught by the German police and they were taken to the concentration camp, where later Annie's mother and Annie and her sister also died. So now I'm going to explain about this lesson. और ये बीच में जो डेट्स दी हैं कि इस डेट को एनी ने ये लिखा था. ये एनी फ्रैंक की जो बुक है, बहुत लोग इसको एन प्रोनाउंस करते हैं, बहुत लोग एनी प्रोनाउंस करते हैं. इट डिपेंड्स, अलग अलग लोग एनी, कुछ लोग एनी फ्रैंक बोलते हैं, कुछ लोग एन फ्रैंक बोलते हैं. सो बोथ आर करेक्ट. क्लियर? सो अब now I'm going to read and explain this lesson. During the World War II in Europe, the Nazis of Germany considered the Jews as inferior to them. अब बेटा जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूरोप में स्टार्ट हुई थी, लॉन्ग बैक, वे बैक इन 1942, तब जो
नाजीज थे जर्मनी के, वो जो ज्यूस जो जर्मनी में रहते थे और जिनको जर्मन नेशनैलिटी मिली हुई थी, उन लोगों को नाजीज अपने से बहुत इंफीरियर, बहुत छोटा समझते थे। जो नाजीज समझते थे कि वो हर तरह से सुपीरियर है, और वो नाजीज चाहते थे कि किसी भी तरह ये ज्यूस को खत्म कर दिया जाए। They wanted to destroy the Jewish people and their culture. वो चाहते थे कि Jewish लोगों का नामो निशान मिटा दिया जाए, इनका कल्चर ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हम सुपीरियर हैं, ये इंफीरियर हैं। As a result, they started sending the Jews to prison camps. और उन्होंने ज्यूस को खत्म करने के लिए ज्यूस को प्रिजन कैंप्स बनाए थे, क्योंकि प्रिजन में भी थोड़े ही आप प्रिजनर्स को रख सकते हो, लेकिन जब बहुत सारे लोग होंगे तो उन्होंने क्या किया, कैंप्स बना के वहां भरना शुरू कर दिया। ना उनका खाने का ध्यान, ना उनके पास ना खाने को, बीमारियां फैल रही हैं, बिकॉज नाजीज का तो एम ही था कि सारे ज्यूस जो है खत्म हो जाए, तो उनको उन्होंने प्रिजनर कैंप्स में डालना शुरू किया। एनी फ्रैंक वॉज ऑल्सो अ ज्यू। अब जो एनी फ्रैंक थी वो भी ज्यू थी। नाजीज अपने आप को अलग मानते थे, और ज्यूज जो है वो जूडिज्म एक रिलीजन होता है जिसको फॉलो करते थे। तो एनी फ्रैंक भी ज्यू थी। एंड टू सेव हर सेल्फ एंड अ फैमिली, Annie, along with mother Edith, father Otto, and sister Margot, went into hiding into the backroom office and warehouse of Annie's father's business. अब जब एनी की फैमिली को पता चला कि ये जो नाजीज हैं ये सारे ज्यूज को पकड़ पकड़ के प्रिजन कैंप्स में डाल रहे हैं, जहां पे लेटर और सूनर उनको खत्म हो ही जाना है, तो ये लोग नाजीज से डर के छुप गए। कहाँ ये लोग छुपे? एनी के जो फादर का एक बिजनेस ऑफिस था, उसका एक वेयरहाउस एक बड़ा सा स्टोर रूम जैसा होता है, ठीक है ना, और उस वेयरहाउस के एक बैक रूम में, एक छोटे से कमरे में, जहां पे हो सकता है बहुत लोगों को उसके रूम के बारे में नहीं पता था, वहां एनी अपने फादर ऑटो, मदर एडिथ और सिस्टर मार्गोट के संग उसमें छुप गई, और इनके साथ 4 और ज्यूज भी वहां पे छुप गए थे। And 4 other Jews also hid with them in these small states. उस छोटे से रूम में, जस्ट इमेजिन, ये 4 लोग, उनके साथ 4 Jews और, एंड एनी फ्रैंक के फैमिली के कुछ नॉन जूइश फ्रेंड्स थे जो स्मगल करते थे फूड एंड अदर सप्लाईज टू देम। हमने स्मगल वर्ड ऑलरेडी पढ़ा है द रॉयल बंगाल टाइगर में। स्मगल वर्ड मीन्स कि कोई चीज जो लॉ मना करता है, कि आप जैसे गोल्ड को नहीं स्मगल कर सकते, एनिमल स्किन्स, एनिमल के बॉडी पार्ट्स को नहीं स्मगल करते, बट फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह ले जाने लाने को स्मगल कहते हैं। तो अब क्योंकि एनी फ्रैंक की फैमिली ज्यू थी और उनके संग 4 ज्यूज और छुपे हुए थे, तो इनके कुछ नॉन जूइश फ्रेंड्स थे, मे बी वो भी नाजीज होंगे, है ना, लेकिन वो जहां ये लोग छुपे थे, अब ये लोग तो बाहर निकल नहीं सकते थे, इनको बेसिक चीजों की जरूरत, जैसे लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग भी घर में कैद थे, लेकिन हम लोगों को ग्रोसरी चाहिए थी, टॉयलेट का सामान चाहिए था, तो उसके लिए तो कभी कभी थोड़ा टाइम मिलता था कि आदमी जाके खरीद के ला सके, बट ये लोग निकल नहीं सकते थे। तो इनके जो नॉन जूइश फ्रेंड्स थे वो चुपके, ताकि किसी को पता न लगे, इनको जो इनकी बेसिक नेसेसिटीज का सामान था वो वहां देते, ताकि ये लोग सर्वाइव कर सके। तो ये 8 लोग उस वेयर हाउस के पीछे एक छोटे से रूम में हाइड कर रहे थे। हाइडिंग फ्रॉम हु? द नाजी पुलिस। एंड इनके जो फ्रेंड्स थे वो फूड और जो बेसिक नेसेसिटी की चीज है वो उनको सप्लाई कर रहे थे। एनी फ्रैंक वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और एनी फ्रैंक का बर्थ कब हुआ था? ऑन 12 जून 1929। शी बिगेन टू कीप अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे, और जब एनी 13 ईयर्स की हुई तो एनी ने एक डायरी मेंटेन करना स्टार्ट की। दैट वॉज 12 जून 1942। ये 12 जून 1942 को एनी 13 ईयर्स की हुई थी, और उस दिन से उसने डायरी मेंटेन करना स्टार्ट किया था। 3 weeks later they went into hiding, और एनी के 13th बर्थडे के 3 weeks के बाद ही उनको नाजीज से छुपके वेयरहाउस के बैक रूम में जाना पड़ा। Annie's family never left their hideout until, unfortunately, the Nazi police discovered them in August 1944. अब जस्ट इमेजिन, ये करीब एंड ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 1942 में ये लोग छुपे थे उस रूम में, लेकिन उसके बाद वो कभी भी एनी की फैमिली बाहर ही नहीं निकली। बट अनफॉर्चुनेटली
बैड लक के कारण नाजी पुलिस ने इनको पकड़ लिया। कब? अगस्त 1944 में, ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर। They were then moved to the concentration camp where Annie's mother died in 1945. अब अगस्त 44 में इनको वहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाके नाजी पुलिस ने डाल दिया और एनी की मदर की डेथ 1945 में हो गई। And soon after, Annie and her sister also died of an infectious disease. And as I said, जो prisoner camp थे, concentration camps थे, वहाँ इतनी खराब कंडीशन थी ना खाने का, ना साफ सफाई, तो जहाँ गंदगी रहेगी, अनहाइजीनिक कंडीशंस रहेगी, वहाँ बीमारियां तो फैलेगी ही फैलेगी एंड लोग मरेंगे, ना डॉक्टर्स है ना ट्रीटमेंट है, बिकॉज नाजीज का तो एम ही था कि जूइश लोगों को और उनके कल्चर को खत्म कर देना। तो थोड़े दिन के बाद भी एनी और उसकी जो सिस्टर मार्गरेट थी वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज से उनकी भी डेथ हो गई। देयर फादर वाज द ओनली फैमिली मेंबर हु हैड सर्वाइव और एनी के फादर एक अकेले बचे थे जो जिंदा रह गए। बाकी एनी की मदर, एनी और उसकी सिस्टर, दे डाइड। When friends found Annie's diary in a hiding place, they gave it to her father and who got it published in 1947. अब 2 साल जो एनी उस रूम में रही थी, तो एनी की सबसे अच्छी फ्रेंड कौन थी? वो डायरी, जिसमें एनी अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स, अपने इनर मोस्ट थॉट सब लिखती थी जो किसी से भी शेयर नहीं कर सकती थी। अब एनी के फ्रेंड्स को एनी की डायरी उसकी हाइडिंग प्लेस में मिली, तो एनी के फ्रेंड्स ने वो डायरी लाके किसको दी? एनी के फादर ऑटो को दी एंड एनी के फादर ने उस डायरी को पब्लिश कराया इन 1947। पब्लिश कराना मतलब प्रिंटेड एज अ बुक, और जब बुक के जैसे वो प्रिंट हो जाएगी तो उसको बहुत सारे लोग पढ़ सकेंगे। एनी हु मिस द कंपनी ऑफ अ फ्रेंड्स हैड मेंटेन्ड अ डायरी। अब एनी ने डायरी क्यों मेंटेन की थी? 13th बर्थडे पे उसने सोचा था लिखेंगे, बट बाद में तो क्योंकि एनी बाहर नहीं निकल सकती थी उस छोटे से रूम में, शी वॉज लॉक्ड विद अदर 7 people बिकॉज ऑफ द नाजीज, अदरवाइज वो पकड़ जाते 2 साल पहले। तो एनी ने उस डायरी को अपने सबसे अच्छी फ्रेंड बना लिया जिससे वो अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर सकती थी। Ultimately, the closest friend she had during her tragically short life was a diary. अब आप सोचो, एनी 13 years की थी जब उसने डायरी मेंटेन की एंड 2 years के बाद वो पकड़ा गई नाजी पुलिस से एंड शी डाइड, है ना, थोड़े दिन के बाद। तो उसकी दैट मीन्स कि वो 15 years के आसपास उसकी लाइफ थी, तो बहुत ही शॉर्ट लाइफ थी, है ना। तो और वो शॉर्ट लाइफ भी बहुत ट्रैजिक थी क्योंकि उसने उस छोटी सी जिंदगी में बहुत सारा दुख देख लिया था। सो ट्रैजिकली शॉर्ट लाइफ, ट्रैजिकली मीन्स बहुत अनहैप्पी लाइफ, बहुत दुख भरी लाइफ। तो उसने अपने 15 साल की जिंदगी में बहुत दुख देख लिए थे एनी ने, और उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। शी यूज्ड टू एड्रेस इट, शी यूज्ड टू कॉल हर डायरी एज किटी, शी यूज्ड टू ट्रीट हर डायरी एज अ फ्रेंड। इट वॉज ओनली टू किटी दैट शी इंटरेस्टेड हर इनरमोस्ट थॉट्स, और वो किटी ही थी, वो डायरी ही थी जिसमें एनी अपनी सारी मन की बातें, अपनी सारी फीलिंग्स लिखती थी। Annie's thoughts of courage and hope are recorded in her diary. और एनी की जो भी थॉट्स थी, करेज थी, होप, उसकी उम्मीद थी, उसको हिम्मत थी, और उसकी जो भी मन की फीलिंग्स थी, एनी ने वो सब किस में लिखी हुई थी बेटा? वो सब उस डायरी में उसने नोट डाउन की थी। They have inspired millions of readers throughout the world. और उसकी मतलब उसके जो होप्स और करेज की जो फीलिंग्स थी, जितने भी लोगों ने, मिलियंस ऑफ लोगों ने अक्रॉस दी वर्ल्ड वो बुक बिकी होगी, लोगों ने खरीद के पढ़ी होगी, तो सारे लोग एनी की जो डायरी उसमें जो उसने लिखा था उससे बहुत इंस्पायर हुए, उससे उनको बहुत कुछ मिला। कि एक सोचो 13 से 15 years ओल्ड के बीच की एक छोटी लड़की कितनी हिम्मत और करेज रख सकती है, और बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। तो वो लोगों के लिए एनी की डायरी, जिसने भी उसको पढ़ा, वो एक इंस्पिरेशन है। Here are some excerpts from her diary. Excerpts means part. पूरी जो बुक है, वो डायरी जो प्रिंट हुई है, उसके कुछ कुछ पार्ट्स इस आपके लेसन में डाले गए ताकि आप भी पढ़ो और आप भी मोटिवेट हो सको। When I write, I can shake off all my cares. She had written on April 5th, 1944. एनी ने लिखा था कि जब मैं लिखती हूँ तो मैं अपनी जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स है मैं सब भूल जाती हूँ, है ना। She doesn't carry her problems कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, मैं
में बंद हूँ. तो शी सेज व्हेन आई राइट आई शेक ऑफ, आई लेट देम, मतलब लेट इट गो, कि जो हो रहा है होने दो, नोबडी कैन स्टॉप इट. सो देन डिस्क्राइबिंग अ डिस्पेयर, वो अपना दुख उसने, डिस्पेयर दुख, होपलेसनेस, कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, उसको उसने कैसे डिस्क्राइब किया है. आई हैव रीच द पॉइंट वेयर आई हार्डली केयर वेदर आई लिव और डाई. उसने कहा कि अब मैं इस पॉइंट में लाइफ के आ गई कि मैं मरूं या जीऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज ऐसे बंद रहना भी तो एज गुड एज, इन अ वे, मरने के बराबर ही कि ना आप कहीं जा सको ना कहीं आप आ सको. बहुत आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, isn't it? The world will keep on turning without me and I can't do anything to change events anyway. सबको पता है कि कोई रहे, कोई जिए या मरे, दुनिया तो नहीं रुकेगी, टाइम किसी के लिए नहीं रुकेगा, सब कुछ चलता रहेगा. कोई मरे या कोई जिए, किसी के लिए टाइम नहीं रुकता या दुनिया नहीं रुकती. तो एनी के भी पॉइंट से कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, दी वर्ल्ड विल कीप ऑन टर्निंग, दुनिया तो चलती ही रहेगी. और आई कैन डू एनीथिंग टू चेंज एनीवे, और मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं कुछ भी बदल दूं. आई जस्ट लेट मैटर्स टेक देयर कोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडिंग एंड होप दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन द एंड. और उसने कहा कि अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, जिस जॉब जो होना होगा वो अपने समय पे ही होगा. मैं चाह के भी कुछ रोक नहीं सकती हूँ, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती. आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडिंग, बस मुझे अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा. दिस शी हैड रिटन ऑन February 3rd, 1944. So students, for today till here only, the remaining lesson, that is page 53, I'll be explaining and continuing in my next video. Till then, all of you, please do this lesson 6, A Young Girl and a Diary, again and again. That's all for today. Thank you, students. Good day ahead.